Hello dear students, welcome to my channel. Today we will discuss chapter 3 explanation. This is part 1. In this video I will describe from page number 16 to 18. Soon I will upload the second part too. So please stay connected. Please subscribe my channel and stay connected to it. I hope that you all are doing great at home and also following all the precautions of COVID-19 like washing your hands often and covering your mouth while coughing and sneezing. Please avoid close contact while greeting people. So let's start it. Chapter 3 Flowers and Fruits. Flower is a colorful and beautiful part of a plant. It generally has a pleasant fragrance. Pleasant fragrance मतलब बहुत प्यारी उसकी स्मेल रहती है. Most flowers have attractive colors. कई flowers ऐसे होते हैं जिनके attractive colors रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. Some flowers do not have attractive colors but have very pleasant fragrance. It means what? Flowers may contain a good fragrance and a good color also, but it मे बी कि अगर उसके अट्रैक्टिव कलर्स ना हो लेकिन उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगे. फॉर एग्जाम्पल चंपा, मोतिया एंड चमेली आर सम फ्रेगनेंट फ्लावर्स. आपने चमेली के फ्लावर जो होते हैं, जैस्मिन जिसे हम कहते हैं, उसके फ्लावर को देखा होगा. डेट इज़ वाइट इन कलर, डेट इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट वेन एवर यू पास थ्रू इट, वो उसकी स्मेल इतनी अच्छी, उसकी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी रहती है कि आप वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हो. सो दैट हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव फ्रेगरेंस. A flower develops from a bud. A bud of different flowers vary in their size and shape. The bud of a plant is generally covered with green leaves. These leaves protect the bud and help it to bloom into a flower. जो फ्लावर्स होता है वो एक्चुअली एक बड से ही डेवलप होता है. द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स के जितने बड रहते हैं सभी अलग अलग कलर के रहते हैं और यूजुअली ग्रीन लीव से कवर्ड रहते हैं. ये लीव्स क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं बड में और ऑल्सो इसकी हेल्प करती हैं ब्लूमिंग में, यानी कि इसके और खिलने में इसकी हेल्प करती है. एवरीवन, अगर आपने बुक ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए. Flowers have different shapes and sizes. Everyone please open book and read along with me. ये वो चैप्टर अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज वर्क इज क्वाइट ईजी. फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. फ्लावर्स जो हैं उनके कई तरह के शेप एंड साइज होते हैं. सम फ्लावर्स आर लाइक बेल, some are like plate and some are like brush. Some flowers bloom singly where अदर ब्लूम इन बंचेज. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि सिंगली ब्लूम होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बंचेज यानी ग्रुप में ब्लूम होते हैं. फ्लावर्स मेक फ्रूट्स. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स बियर सीड्स. दीज सीड्स इन टर्न कैन ग्रो इनटू मोर प्लांट्स. तो जो फ्लावर होते हैं वो कुछ टाइम बाद फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा गुआवा, मैंगो, इन सब में. तो ये जो फ्रूट्स होते हैं इनमें सीड्स रहते हैं और आफ्टर सम टाइम when it get ripen that seed germinates the another plant. So यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि ऑब्जर्व एनी बर्ड एंड राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ बर्ड एंड फ्लावर. तो यू कैन राइट अ बर्ड इज स्मॉलर देन अ फ्लावर एंड बर्ड्स आर यूजली कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स वाइल फ्लावर्स आर नॉट. तो दीज ग्रीन लीव्स जिससे कवर्ड रहते हैं उनका क्या रहता है? टू प्रोटेक्ट द बर्ड. कमिंग नेक्स्ट टू द पेज नंबर 17. Seasonal flowers. We see different types of flowers in different season. Like in summer, you must have seen chameli, motia, sadabahar, china rose, lily flowers blooming in gardens. In winter, dahlia, rose, chrysanthemum are some of the commonly seen flowers. Come to the do you know part. Watermeal or Wolfia globosa is the smallest flower and Rafflesia amoldi is the largest flower in the world. अब यूजेस क्या होते हैं फ्लावर्स के? In our day-to-day life, we use flowers in different ways. Some flowers have a very pleasant fragrance, so they are used for making perfumes. आपने perfume यूज किया होगा ना? So many fragrant flowers are used to make
Perfumes like rose, jasmine, Kiora, lavender are some of such flowers. Some flowers can be cooked and eaten like a vegetable, like kachnar, banana, sahjan flowers are eaten as the vegetable in many parts of India. सहजन फ्लावर की कई लोग अपने घर में पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, आप लोगों ने भी टेस्ट किया होगा. इट्स वेरी टेस्टी. So these all are the flowers which can be eaten as a vegetable too. Come to the page number 18. Some flowers are used as medicines like cloves. लौंग को हम क्लोव बोलते हैं. तो क्लोव होती क्या है? लौंग जो होती है यूजुअली वो ड्राइड बड रहती है. कभी आप ध्यान से लौंग का शेप लेके देखिएगा. डैट इज अ बड जिसे एकदम वो ड्राई होगी रहती है. और इसलिए हमें इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं डैट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन. Or similarly, some lotions are made from the arnica flower which is used to cure wounds and injuries. Rose water also used as a medicine and also for adding flowers to sweet and drinks. Flowers are also used for preparing cosmetics. कॉस्मेटिक मीन्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए भी फ्लावर्स यूज होते हैं. फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जेनिया आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स. दीज कलर्स आर यूज टू डाई क्लॉथ्स. आपने देखा होगा कि गेंदे के फूल को अगर आप थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देते हैं तो उसका कलर पूरा येलो कलर का हो जाता है. एंड इफ़ यू पुट एनी वाइट क्लॉथ इन इट दैट विल ऑल्सो टर्न इन टू येलो कलर. सो some flowers like marigold and genia they are used to dye the colors, dye cloths and other things. Flowers are often used for decoration purpose. आपने देखा होगा कोई भी अच्छे से फंक्शन होता रहता है तो फ्लावर्स को यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए. सो हियर ऑल्सो and a small activity is given which you all can done by yourself. Ask your mother whether she uses a flower as vegetable. क्या अपनी मम्मी से पूछेगा कि क्या वो किसी फ्लावर को यूज करती है वेजिटेबल बनाने में. अगर हाँ तो उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा. राइट डाउन अ फ्यू प्लेसेस वेयर हैव यू सीन फ्लावर एज अ डेकोरेटिव मटेरियल. जैसे मैंने अभी कहा कि फंक्शन वगैरह में, उसी तरह से आपने कहाँ कहाँ देखा है फ्लावर को कि डेकोरेशन के लिए यूज किया गया है वो आप लिख सकते हैं. हैव यू एवर विजिटेड अ फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट का मतलब होता है वो आदमी जो कि फूल को बेचता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट. सो देयर वन कैन सी मैनी टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन बुके. आपने देखा होगा कुछ दुकानों पे ऐसे फ्लावर के बुके बना के रखे रहते हैं, लोग उनको खरीदते हैं तो उनको बोलते हैं फ्लोरिस्ट. तो इसमें लिखा है कि विजिट एनी फ्लोरिस्ट एंड गैदर इन्फॉर्मेशन. तो यू नीड नॉट टू विजिट एनी प्लेस. आप कहीं मत जाइएगा. यू जस्ट इमेजिन एंड राइट इट. राइट द नेम ऑफ द 2 फ्लावर्स अवेलेबल विद द फ्लोरिस्ट. आप ऐसे ही सोच सकते हैं. इट्स बेटर कि फ्लोरिस्ट के यहाँ जाने के बजाय आप अपने गार्डन के ही फ्लावर्स को देख लीजिए. एंड यू हैव टू राइट दैट 2 फ्लावर्स प्रेजेंट इन योर गार्डन एंड नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. जो पूरे साल ग्रीन रहते हैं. और ये सारे जो गार्डन रहते हैं वो आप लगाने के लिए कहाँ से लेके आए थे उस जगह को लिखिएगा. लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. जब आप उसको पौधे को जब आप बड़ा करते हैं और फिर उससे जब फ्लावर्स को लेके डेकोरेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं. एंड वाई डू यू लाइक टू मेक अ बुके. आप क्यों ऐसे बुके बनाते हैं ये भी लिखिएगा. ओके. सो बेसिकली इट्स अबाउट कि आपको इमेजिन कीजिए कि इफ़ यू आर मेकिंग अ बुके देन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स विल यू रिक्वायर. इफ़ यू हैव अ गार्डन तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स होंगे. एंड विद दिस यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी. मैं कल आपको इसका कंप्लीट इसको सोल्यूशन भी भेज दूँगी, बट आज इसे आप खुद से ट्राई करने का ज़रूर कीजिएगा. We have now learned that flowers are used to prepare medicine, perfume and scents. These can also be used as a decorative material. It is important therefore to protect flowers from being plucked unnecessarily. ये बहुत ज़रूरी है कि हम फूलों को बिना मतलब के तोड़ने से बचें. So I hope that you have understood it. Thanks for watching. Please subscribe my channel to get informed timely. Stay home, stay safe. And if you have any confusion you can ask on my personal number.
Have a great day ahead. Take care a lot.